میں نے پائپ کو ایک بار پھر نشانے پر لیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اپنے ہدف کی طرف بڑھی، مگر اسی دوران میں مجھے لگا کہ میرے دائیں ٹخنے سے دہکتا انگارہ چھو گیا ہے۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ غیر ارادی طور پر میرے دائیں ہاتھ نے مشین گن کا دستہ چھوڑ دیا اور جھلستے ٹخنے کی طرف بڑھا، مگر اس دوران میں میرے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت نے بدستور ٹریگر اپنی طرف کھینچ رکھا تھا، لہٰذا دایاں ہاتھ دستے سے ہٹتے ہی فائرنگ کرتی مشین گن کا رخ ایک جھٹکے سے بدلا اور نال ہدف سے ہٹ کر اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ جب تک میں بائیں انگشت شہادت ٹریگر سے ہٹاتا، کئی گولیاں ہدف سے ہٹ کر کسی اور طرف پرواز کر چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے مشین گن فرش پر ٹکائی اور اپنے ٹخنے کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ گولی کا ایک خالی کھوکھا اس جگہ میرے لباس میں اٹکا ہوا ہے۔ بارود جلنے سے دہکتے اس کے ایک سرے نے میرا لباس جلا دیا تھا اور اپنے بنائے ہوئے سوراخ میں پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے جھٹک کر اسے لباس سے الگ کیا، مگر اس اثنا میں وہ اپنا کام دکھا چکا تھا، اور تیز جلن سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہاں سے میری کھال اچھی خاصی جل چکی ہے۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ شدید اذیت کے باوجود میں اپنے گھاؤ کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ اتنی تکلیف نظر انداز کر کے میں ایک بار پھر اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دوربین کا نصف حصہ دائیں آنکھ سے لگایا اور تیسرے پائپ کی حالت کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اطمینان سے بھر گیا کہ اس مرتبہ میری کاوش رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اس پائپ کے پرخچے اڑ چکے تھے، مگر تبھی ایک اور منظر نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا کہ فولادی بند میں 5-6 بڑے بڑے چھید پڑ چکے ہیں، جن سے پانی کے دھارے گر رہے تھے، جن کی رفتار اور حجم پائپوں کے سوراخوں سے خارج ہونے سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ذہن میں زوردار چھناکا ہوا۔ یہ بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ جو گولیاں میں نے ان منحوس پائپوں پر ضائع کی ہیں، وہ سب کی سب میں اس فولادی بند پر برساتا تو اس کے پرخچے اڑ چکے ہوتے۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ ان میں سے شاید ایک بھی گولی ضائع نہ ہوتی۔ اس فولادی بند پر فائرنگ کرنے کا پہلے خیال نہ آنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ مجھے 50 کیلیبر کی گولی کی تباہ کاری کا پوری طرح ادراک نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ گولی فولاد کی شاید 1.5-2 انچ موٹی چادر میں بھی اتنے بڑے چھید ڈال سکتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں امٹتے ہیجان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر فولادی بند پر 50 کیلیبر کی گولیوں کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ مجھے لگا کہ ان سوراخوں سے ابلتے پانی کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں نے ڈش کا مشین گن اٹھائی اور اس کے دونوں دستے مضبوطی سے تھام کر اس کی نال کا رخ سیدھا فولادی بند کی طرف کر دیا۔ یہ والا ہدف اتنا بڑا اور واضح تھا کہ میں نے مشین گن پر نصب دوربین میں جھانکنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اگلے ہی لمحے میں نے ٹریگر پوری طرح اپنی طرف کھینچ لیا۔ ڈش کا غضبناک ہو کر چنگھاڑی اور پھر زبردست جھٹکے کے ساتھ اپنے دہانے سے ہلاکت خیز گولیاں اگلنے لگی۔ اتنی فائرنگ کے بعد اب میں اسے زیادہ بہتر انداز میں سنبھالنے کے قابل ہو گیا تھا، لہٰذا میرے اندازے کے مطابق اس مرتبہ گولیوں کی بوچھاڑ میری خواہش کے عین مطابق چند فٹ کے دائرے تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ میں نے فائرنگ روک کر دوربین کے نصف حصے کی مدد سے جلدی سے جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں روشنی بڑھ گئی کہ محدود دائرے میں ایک ساتھ لگنے والی گولیوں نے وہاں سے فولادی چادر کے پرخچے اڑا دیے اور وہاں 1.5-2 فٹ کا سوراخ بنا دیا ہے، جس سے بہت زوردار ریلے کی شکل میں پانی خارج ہو رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی طاقت سے اس سوراخ کی چوڑائی بڑھنے لگی۔ یہ منظر میری روح کو سرشار کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں نے اپنے کیف و سرور کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے ایک بار پھر مشین گن اپنی گرفت میں لی اور فولادی بند میں پہلے سے موجود اور تیزی سے پھیلتے سوراخ سے کچھ ہی فاصلے پر نشانہ ساتھ کر ایک بار پھر فائرنگ شروع کر دی، اور اس وقت تک ٹریگر پر دباؤ برقرار رکھا جبکہ پٹے میں جڑی آخری گولی بھی اپنے ہدف کی طرف پرواز نہ کر گئی۔ میں نے اپنے کانوں پر ٹوٹی قیامت نظر انداز کر کے جلدی سے مشین گن فرش پر ٹکائی اور دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ ڈیم پر نظر پڑتے ہی میرے رگو پے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بند کی سیاہ فولادی دیوار کا سینہ پوری طرح چاک ہو چکا تھا اور ڈیم میں جمع لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں گیلن سمندری پانی کے موزوں ریلے طوفانی رفتار سے خارج ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی پانی کے زور کی وجہ سے گولیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سوراخ مسلسل چوڑا ہو رہا تھا۔ سمندری ریلوں کا زور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے دہشت سی محسوس ہوئی۔ لگتا ہے پورا ایٹمی پلانٹ زیر آب آنے والا ہے۔ موج مارتا پانی پشتنما دیوار پار کر کے اب کوئی 1 فٹ بلند سیلابی ریلے کی شکل میں ایٹمی پلانٹ میں داخل ہو رہا تھا، اور بند کے تیزی سے پھیلتے شگاف سے میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ پانی کی سطح میں اب تیزی سے اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی بخوبی اندازہ تھا کہ خود اس ٹینکی والے مینار کے احاطے میں پانی آ چکا ہوگا اور کچھ ہی دیر میں میرے لیے نیچے اترنا ممکن نہیں رہے گا۔ تاہم مجھے اپنے سیلابی پانی میں گھرنے کی قطن کوئی پرواہ نہ تھی۔
मेरा दिल इत्मीनान और तशक्कुर के जज्बात से बोझल था। मेरे प्यारे रब ने मुझे अपने मकसद में सुरखरू कर दिया है। अब मैं जिंदा रहूं या उन सैलाबी रेलों में डूब जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि जब अल्लाह करीम ने मुझे मौका फराहम किया है तो अपनी जान बचाने की बिसात भर कोशिश में क्या हर्ज है। यहाँ से बच निकला तो शायद मेरे वतन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए दुश्मन की तरफ से बनाए गए इस तरह के मजीद किसी मंसूबे को तहस नहस करने की सादत नसीब हो जाए। ये ख्याल जहन में जागुज़ी होते ही मैंने उस पर अमल करने की ठानी। मगर तभी एक सवाल जहन में पैदा हुआ, मुझे जल्द से जल्द नीचे खड़ी जीप तक पहुंचना है। इतनी भारी मशीन गन साथ ले जाने से मेरी रफ्तार कम हो जाएगी। उसके साथ ही सैलाबी पानी बढ़ने की वजह से मेरे बच निकलने का इम्कान कम हो जाएगा। तो क्या उसे यहीं छोड़ जाऊं? अपना कुछ न कुछ दिफा करने के लिए मेरे पास ईशापुर राइफल और मेरा लाडला बरेटा तो है ही। फैसला करने के लिए मेरे पास मोहलत बिल्कुल नहीं थी। मगर शिशुपंज के दौरान मेरी नजर जैसे ही डिशका मशीन गन पर पड़ी, मेरा जहन एक नतीजे पर पहुंच गया। अगले ही लम्हे मैंने गोलियों वाला कैनवस बैग शाने से लटकाया और फिर अल्लाह का नाम लेकर बाएं हाथ से नाल और सीधे हाथ से अकबी दोनों दस्तों में से एक जकड़ कर जोर लगाया और डिशका मशीन गन उठा ली। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी फौलादी सतह अब अच्छी खासी गर्म है। मगर सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि उस वक्त मैं अपनी हथेली और उंगलियों की झुलसती खाल की अजियत पर तवज्जो देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उसी हिजानी कैफियत की वजह से मुझे मशीन गन के भारी वजन पर तवज्जो देने का भी मौका नहीं मिला। मैं इस कदर तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था कि पांव अटक जाते तो मशीन गन समेत इतनी बुलंदी से सीधा जा गिरता और मौके पर ही मेरा काम तमाम हो जाता। मैं अभी जीने के निचले हिस्से तक पहुंचा भी नहीं था कि मुझे फर्श पर पड़ी लक्ष्मण और उसके साथी की लाशें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। साथ ही ये भी नजर आ गया कि दरवाजे से मुसलसल पानी अंदर दाखिल हो रहा है। मैं चपाक से पानी में उतरा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकला तो हद नजर तक पानी ही पानी दिखाई दिया। साथ डैम की तरफ से पानी के तेज बहाव का शोर भी सुनाई दे रहा था। मैं बिला तवक्कुफ हत्तुल इम्कान तेज कदमों से जीप की तरफ बढ़ने लगा। मैंने डिश का मशीन गन अकबी हिस्से में फेंकने की बजाय दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर इस तरह रख दी कि उसकी नाल खिड़की से बाहर निकली हुई थी। उसके बाद मैंने ड्राइवर सीट संभाल ली। मगर इससे पहले कि मैं जीप स्टार्ट करता, एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैं एक बार फिर मशीन गन की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने जल्दी जल्दी कैनवस बैग से गोलियों का तीसरा और आखिरी पट्टा निकाला और मशीन गन के चैम्बर का ढक्कन खोल कर चढ़ा दिया। अलबत्ता बोल्ट लीवर खींचकर उसे कॉक करने के लिए मुझे काफी जोर आजमाई करना पड़ी। उसके साथ ही मैंने मशीन गन का सेफ्टी लॉक लगा दिया। इग्निशन में चाबी घुमाते ही जीप का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने कोई 1.25 फुट के लगभग सैलाबी पानी में गाड़ी का रुख फाटक की तरफ कर दिया। फाटक तक पहुंचने से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया कि एटमी प्लांट में जबरदस्त अफरा तफरी का आलम है। तमाम लाइटें रोशन हो चुकी थीं और हर तरफ से सायरन चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि हालात की तूफानी पेशरफ्त में मुझे अपने कानों से धज्जियां निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया है। कानों को आजादी मिलते ही मुझे लोगों की चीखो पुकार की हल्की और तेज आवाजें भी सुनाई देने लगी। सबसे मजे की बात यह थी कि रिसर्च लेबोरेटरी की 4 दीवारी पर मौजूद निगरान चौकी वाली दोनों डिश का मशीन गन्ने अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। इसका मैंने ये मतलब लिया कि उन नालायकों ने बदहवासी में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अपने पास मौजूद पट्टों में जड़ी तमाम गोलियां खत्म कर डाली हैं और अब गालिबन बदहवासी के आलम में बड़े एमुनिशन बक्स से गोलियां निकाल कर उन्हें पट्टों में जड़ने में मसरूफ हैं। मैंने फैसला किया कि रिएक्टर्स की तरफ जाने की बजाय फरार के लिए वही रास्ता इख्तियार करूं जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा था। एक तो मुझे वहां से एटमी प्लांट के मरकजी फाटक तक जाने वाले रास्ते का अंदाजा था, दूसरे उस तरफ सैलाबी पानी की सतह भी निस्बतन कम मिलने का इम्कान था। लिहाजा सड़क पर पहुंचने के बाद मैंने जीप की हेडलाइट्स रोशन की और स्टीयरिंग बाएं तरफ घुमा दिया और जीप पानी में रास्ता बनाती दोनों तरफ लहरें पैदा करती तेजी से आगे बढ़ी। मगर मुझे लग रहा था कि बहुत जल्द पानी जीप के अंदर भी पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। तभी मुझे अपने बाएं तरफ कोई 100 गज के फासले पर एक छोटा सा ट्रक रिएक्टर की तरफ से तेजी से अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। ये मंजर देखकर मेरे वजूद में इस्तराब की लहर दौड़ गई। रोशनी महदूद और ट्रक की हेडलाइट्स रोशन होने की वजह से मैं देखने से कासिर रहा कि उस ट्रक में कितने लोग सवार हैं। मुझे लगा वो फौजी ट्रक है। मैं उस ट्रक में सवार अफराद की नीयत और इरादों से वाकिफ नहीं था। ज्यादा इम्कान ये था कि वो भी मेरी तरह फरार होने की कोशिश में सड़क की तरफ बढ़ रहे हों, मगर उस ट्रक को करीब आने का मौका नहीं दे सकता था। लिहाजा मैंने जीप की रफ्तार मजीद बढ़ा दी, मगर पानी की मज़ाहमत की वजह से इंजन को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था और वो बुरी तरह चीख रहा था। जीप अपनी तवक्को के मुताबिक न बढ़ पाने पर मैंने मुस्तरिब नजरों से अपने बाएं तरफ से बढ़ते ट्रक का एक बार फिर जायजा लिया।
मैंने फौरन ही पहचान लिया, ये WC52 मॉडल डॉज ट्रक था जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर विराजमान अफसर समेत 10 फौजी सफर कर सकते थे। 1 और 10 का तकाबुल ज़हन पर आने पर मुझे तशवीश महसूस हुई, जबकि मुझे ये भी अंदाजा था कि 3 टन यानी 3 टन वजन उठाने के काबिल ये ट्रक मेरी जीप के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर इंजन का मालिक है। अगर खुली सड़क पर वो मेरे पीछे लग गया तो मेरे लिए फरार आसान नहीं रहेगा। मैंने एक बार फिर एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ाया, मगर इंजन की एक एहतजाजी चिंगाड़ मारने के बावजूद जीप की रफ्तार में कोई नुमाया इजाफा न कर पाया। तभी मैंने डॉज ट्रक की तरफ से किसी की ललकार सुनी। कोई अंग्रेजी में मुझे रुकने का हुक्म दे रहा था। मैंने अपने वजूद में दौड़ती इज़्तिराब की लहरें नजरअंदाज करके उस हुक्म पर कान नहीं धरा और जीप आगे बढ़ा गया। कोई 15 सानियों के बाद मैंने एक बार फिर वही ललकार सुनी। इस बार हुक्म के साथ एक गलीज गाली भी मेरी तरफ उछाली गई थी। मैंने जीप बदस्तूर आगे बढ़ाते हुए एक नजर ट्रक पर डाली। तब मुझे पता चला कि वो ट्रक कीचड़ में फंस चुका है। उसके टायर घूम रहे थे मगर वो आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे जीप रोकने का हुक्म देने वाले के लहजे की रौनत बता रही थी कि वो कोई आला फौजी अफसर है। वो गालिबन मुझसे वो ट्रक कीचड़ से खींचकर बाहर निकालने में मदद का ख्वाह था। तभी मुझे एक बार फिर उसकी चिंगाड़ सुनाई थी। अब वो खुद को मेजर शोरवीर बताकर मुझे जीप रोकने का हुक्म देते हुए गालियों के साथ खौफनाक अंजाम की धमकियां भी दे रहा था, जिसमें मुझ पर फायर करने की धमकी भी शामिल थी। जाहिर है वो कितना भी शोर मचाता, जीप रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जबकि मुझे ये भी इत्मीनान था कि अपने ऊंचे रैंक के नशे में चूर होने के बावजूद वो मेजर इतना भी पागल नहीं हो सकता कि इतनी सी बात पर फायरिंग कर डाले। मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। अचानक फजा में गोली चलने के 3 लगातार धमाके गूंजे। मैंने फौरन ही अंदाजा लगा लिया कि डॉज ट्रक की तरफ से ईशापुर राइफल से फायरिंग की गई है। खुदा जाने मेजर शोरवीर का निशाना खता हो गया था या महज मुझे डरा कर रुकने पर मजबूर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी। बहरहाल उन तीनों में कोई भी गोली मुझे नहीं लगी, न ही मेरी जीप से टकराई। इससे पहले कि मैं सूरत हाल पर कोई लाहे अमल तय कर पाता, मुझे ट्रक की तरफ से एक बार फिर उसी शख्स की चिंगाड़ सुनाई दी। इस बार उसके लहजे में जुनून की हद तक तैश नुमाया था। मुझे समझने में मुश्किल न हुई कि सैलाब में डूबकर मरने के खौफ ने उसे लगभग दीवाना कर दिया है। मैंने उसका हुक्म न माना तो वो इस बार सचमुच सीधा मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। मेजर शोरवीर ने यकीनन इस मर्तबा मुझे वाकई मार डालने की धमकी दोहराई होगी, मगर उसकी आवाज डिश्का मशीन गन्नों की लगातार फायरिंग की तड़तड़ाहट में दब गई। यकलख्त मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। मैंने उस मेजर से पीछा न छुड़ाया तो वाकई मेरी जान ले सकता है और मुझे ये काम जल्द अज जल्द कर डालना चाहिए। मैंने ब्रेक लगाकर जीप रोक दी और फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर घुटनों के बल बैठते हुए डिश्का मशीन गन को दोनों दस्तों से थामकर उसकी नाल का रुख डॉज ट्रक की तरफ कर दिया। साथ ही मैंने उसका सेफ्टी लॉक हटा दिया। इस दौरान में निगरान चौकी वाली डिश्का मशीन गनों की फायरिंग शायद गोलियों के नए पट्टे चढ़ाने की वजह से थम गई थी। मैं उनकी तरफ से फायरिंग दोबारा शुरू होने का बेताबी से मुंतजिर था ताकि उस फायरिंग के धमाकों की आड़ में खुद भी फायरिंग कर सकूं। डिश्का मशीन गनों की फायरिंग में वक्फा ज्यादा तवील नहीं होना चाहिए था, मगर इससे पहले ही डॉज ट्रक की तरफ से एक बार फिर फायरिंग हुई। इस मर्तबा ईशापुर राइफल से यके बाद दीगरे गोली चलाई गई। 2 गोलियों का रुख सीधा मेरी तरफ था और उनमें से एक गोली जीप के बोनट में व्यवस्थ हो गई थी। अगर उसका रुख सिर्फ 1.5-2 फुट दाएं तरफ होता तो मेरा काम तमाम हो चुका होता। अब मजीद इंतजार मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था, लिहाजा मैंने अपनी मशीन गन की नाल का रुख डॉज ट्रक की विंडशील्ड की तरफ कर दिया। ये महज इत्तेफाक ही था कि ऐन उस वक्त जब मैंने मशीन गन का ट्रिगर खींचा, निगरान चौकी वाली मशीन गनों में से एक ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह मेरे चलाए हुए गोलियों के मुख्तसर से ब्रस्ट के धमाके उस मशीन गन के फायरों की गूंज में दब गए। ये अलग बात है कि मेरी चलाई हुई 50 कैलिबर की 4-6 गोलियों ने डॉज ट्रक की विंडशील्ड के चीथड़े उड़ा दिए थे। मुझे यकीन था कि गोलियां ठीक निशाने पर बैठी हैं और अपनी तबाहकुन ताकत के साथ उन्होंने न सिर्फ ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट पर मौजूद अफराद के जिस्म टुकड़ों में तकसीम कर दिए होंगे, बल्कि दोनों सीटों के आर पार निकलकर पिछले हिस्से में बराजमान फौजियों के भी परखचे उड़ा दिए होंगे। फायरिंग के जोरदार धमाकों की वजह से मेरे कान कम से कम वक्ती तौर पर सुनने के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए अगर डॉज ट्रक की तरफ से कोई चीख बुलंद भी हुई थी तो मैं नहीं सुन पाया था। मगर मैं देख सकता था कि ट्रक में जिंदगी के कोई हल्के से आसार भी नुमाया नहीं हुए। उसका ड्राइविंग कैबिन बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और वहां से रफ्ता रफ्ता शोले बुलंद हो रहे हैं। मजीद तस्दीक की जरूरत थी न गुंजाइश। मैंने मशीन गन का सेफ्टी लॉक दोबारा लगाकर उसे पहले की तरह पैसेंजर सीट पर टिका दिया और जीप आगे बढ़ा दी।
इस दौरान में पानी की सतह मजीद ऊंची हो गई और जीप चलने से लहरें खाता कुछ पानी दरवाजे के नीचे अंदर भी आ रहा था। इस दौरान में मशीन गन्नों की घनगरज और खतरे के सायरनों की चीखों पुकार भी जारी थी। एटमी प्लांट की तमाम लाइट्स रोशन होने की वजह से अब आसपास सब कुछ खासी हद तक वाज़े नजर आ रहा था। ये सूरत मेरे लिए तशवीशनाक थी, मगर ये भी इत्मीनान था कि एटमी प्लांट में हर तरफ इतनी अफरा तफरी का आलम है कि शायद कोई भी मेरी तरफ तवज्जो देने की जहमत न करे। अलबत्ता डिश का मशीन गन के नजरों में आने का कवी इम्कान था। उसे फौरी तौर पर नजरों में आने से बचाने के लिए मुझे फौरन कुछ करना होगा। ये ख्याल आते ही मैंने जीप का स्टीयरिंग बाएं हाथ से संभाला और दाएं हाथ से मशीन गन का एक दस्ता पकड़कर उसे उठाया और उसे अपनी तरफ खींचा। मशीन गन की नाल फिसल कर अंदर की तरफ आई, मगर इस दौरान में उसका दस्ता मेरी रांद से टकरा चुका था और उसे मजीद अंदर खिसकाने की गुंजाइश नहीं रही थी। मजबूरन मुझे जीप रोकना पड़ी। मैंने उसे न्यूट्रल गियर में डाला और फिर दोनों हाथों से मशीन गन उठाकर उसे दस्तों के बल पैसेंजर सीट के नीचे टिका दिया। उसकी नाल अब भी इतनी ऊपर उठी हुई थी कि करीब से देखने पर विंडशील्ड से साफ नजर आ जाती। इसका हल मैंने ये निकाला कि नाल को दोनों सीटों के दरमियानी खला से अकबी हिस्से की तरफ निकाल दिया और उसे मजीद पोशीदा करने के लिए गोलियों वाला कैनवस बैग उस पर रख दिया। मैंने बगौर देखा और मुतमईन हो गया। अब जीप में झांक कर बगौर देखने पर ही मशीन गन की मौजूदगी का पता लग सकता था। मैंने ईशापुर राइफल भी कॉक करके अपने पैरों के पास खड़ी कर दी। मैंने उसका सेफ्टी लॉक भी लगा दिया था। उसके बाद मैंने जीप एक बार फिर आगे बढ़ा दी। मैंने जैसे ही सड़क के मोड़ पर दाएं तरफ स्टीयरिंग घुमाया, सामने दिखाई देने वाले मंजर ने मुझे चौंका दिया। मुझे कोई फरलांग भर आगे बाएं तरफ वाक़े पहले रिएक्टर से मुंसलिक इस्तकबालिया की इमारत के दाखिली दरवाजे के सामने एक बड़ा फौजी ट्रक खड़ा नजर आया। इतने फासले से भी मैं देख सकता था कि इस्तकबालिया की इमारत से एक के बाद दीगरे लोग निकलकर घुटनों से भी बुलंद मौजें मारते पानी से गुजरकर बदहवासी के आलम में ट्रक में सवार हो रहे हैं। मैं कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि ट्रक के अकबी हिस्से में लटके दो फौजी रिएक्टर के अमले के उन अफराद को हाथ थाम कर ट्रक पर चढ़ने में मदद दे रहे हैं, जबकि सड़क के दाएं तरफ भी एक ट्रक और एक जीप गालिबन अपनी बारी के मुंतजिर थे। उन दोनों गाड़ियों का रुख मेरी तरफ था। मुझे ये देखकर तशवीश हुई कि सड़क पर दोनों ट्रकों के दरमियान काफी कम जगह है। मुझे लगा कि इतनी तंग जगह से मेरी जीप नहीं निकल पाएगी, मगर मैंने रफ्तार कम नहीं की। ठहरने या कोई मुतबादिल लाहे अमल सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं समझ सकता था कि कुछ ही देर में पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाएगी कि जीप का इंजन भी डूबने की वजह से बंद हो जाएगा। उसके बाद मेरे लिए फरार की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ देगी। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो और मेरी जीप दोनों ट्रकों के दरमियान से निकलने में कामयाब हो जाए। जैसे जैसे मेरी जीप उन ट्रकों की तरफ बढ़ रही थी, मेरे दिल की धक धक बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि इस दौरान में पानी की सतह कुछ मजीद बुलंद हो गई है। मैं मजीद आगे बढ़ा तो दोनों ट्रकों के दरमियान से दिखाई देने वाले मंजर से पता चला कि वहां से भी कोई 100 गज आगे वाक़े दूसरे रिएक्टर के सामने भी शायद 2-3 ट्रक खड़े हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वहां से भी रिएक्टर के कारकुनों के इनखला का अमल जारी होगा। मैं पहले रिएक्टर के सामने खड़े ट्रकों के करीब पहुंचा तो पता चला कि उन दोनों के दरमियान वाकई बहुत कम गुंजाइश है। मैंने इस तरह के आलम में सोचा कि अब क्या करूं, मगर ऐन उसी वक्त रिएक्टर के इस्तकबालिया के दरवाजे के सामने खड़ा ट्रक गालिबन रिएक्टर के अमले से भर जाने की वजह से चल पड़ा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इससे पहले कि दूसरा ट्रक वहां लगता, मैं आगे बढ़ते ट्रक के पीछे पहुंच चुका था। मैंने सड़क के दाएं तरफ खड़े ट्रक और जीप की तरफ देखने से कस्तन गुरेज किया। उन हालात में खुद को बदहवास जाहिर करना ही बेहतरीन हिकमत अमली थी। उस वक्त सब जान बचाकर जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहते थे और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। मैं अपनी जीप और ट्रक के दरमियान कम से कम 50 गज फासला बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि ट्रक के पिछले हिस्से में बराजमान कम से कम 2 फौजी मेरा और मेरी जीप का करीब से जायजा न लेने पाएं। मगर जैसे ही दूसरा रिएक्टर करीब आया, मुझसे आगे चलते ट्रक की रफ्तार कम हुई और फिर वो रुक गया। मैं इतने पीछे ब्रेक लगा कर नजरों में नहीं आना चाहता था, लिहाजा मैंने जीप की रफ्तार कम करने पर इक्तिफा किया और फिर ट्रक से कोई 25 गज पहले जीप रोक दी। इस दौरान में मुझे ये धड़का भी लगा हुआ था कि कहीं पीछे से कोई जीप या कोई गाड़ी ना आ जाए। जीप के अकबी खुले हिस्से से डिश का मशीन गन की मुहीब नाल आसानी नजर आ जाती। उधर आगे खड़ा ट्रक अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इससे पहले कि मेरा इस्तराब अपनी आखिरी हदों को छूता, मेरे आगे खड़ा ट्रक एक बार फिर चल पड़ा। मैंने कयास लगाया कि वो आगे वाले रिएक्टर के अमले को भर कर ले जाने वाले दोनों ट्रकों के पीछे चल रहा है।
मैंने उसके मजीद आगे बढ़ने का इंतजार किया और फिर मेरी जीप भी कोई 40 गज के फासले से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे बखूबी अंदाजा था कि इस भगदड़ और अफरा तफरी के पसे पर्दा सिर्फ समंदर की तरफ से जंगी बहरी जहाजों या आबदोजों की तरफ से एटमी प्लांट पर हमले का खौफ नहीं है, बल्कि एटमी प्लांट पर सैलाबी पानी की जलगार के नतीजे में रिएक्टर को नुकसान पहुंचने और उसके नतीजे में किसी भी वक्त तबाही फैलने के खौफ ने भी तमाम अफराद की रूह खुश्क कर रखी होगी। इसीलिए सब के सब जल्द अज जल्द यहाँ से फरार होने के लिए कोशां हैं। उनकी यही बदहवासी अब तक मेरे बचाव का सबब बनी हुई थी। किसी को इतना होश ही नहीं था कि मुझ पर तवज्जो दे पाता, मगर मुझे कोई खुश फहमी नहीं थी। मैं जानता था कि हर गुजरते पल के साथ मेरे लिए खतरा बढ़ रहा है। जीप में मौजूद दिशका मशीन गन किसी भी वक्त अकब या दाएं बाएं से आने वाली किसी भी गाड़ी में मौजूद फौजियों या एटमी प्लांट के कारकुनों की नजरों में आ सकती है, जबकि सबसे नुमाया और मुतलक खतरा तो बड़े फाटक पर तैनात सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से है। वो बाकी लोगों जितने बदहवास नहीं होंगे। हो सकता है उन्होंने इस हंगामी सूरत हाल के लिए कोई आर्जी तरीका कार भी वज़ा कर रखा हो। बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन कौन जाने वो एटमी प्लांट से फरार होने वालों के नामों और दीगर कवायफ का इंतराज भी कर रहे हों। इन तमाम खदशों के तहत सड़क के मरकजी फाटक की तरफ मुड़ते ही मैं मोहतात हो गया। मुझे लगा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पानी की सतह कुछ कम होती जा रही है। शायद ये फाटक और दीगर खारजी रास्तों से पानी के खुले मैदानी इलाके की तरफ इखराज का नतीजा हो। बहाव में भी पहले जैसी तेजी नहीं थी, इसीलिए ट्रकों की रफ्तार भी बढ़ गई थी। मैंने भी एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया और मेरी जीप पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी मुझे कोई फरलांग भर आगे मरकजी फाटक दिखाई दिया। ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि फाटक चौपट खुला हुआ था और फौलादी बैरियर भी ऊपर उठा हुआ था। मैंने एक वैगन और फिर एक मुसाफिर बस फाटक से निकलती देखी। वहां सिर्फ 2 फौजी तैनात दिखाई दे रहे थे, जो उस वक्त 2 कुर्सियों पर खड़े थे और अपनी राइफलें उन्होंने शानों से लटका रखी थी। ये सब आसार बज़ाहिर हौसला अफजा थे, मगर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझ पर हिजान का गलबा होता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खतरनाक सूरत हाल से इतनी आसानी से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर मेरी ये खुश उम्मीदी जल्द ही दम तोड़ गई। मैंने देखा कि मुझसे आगे चलने वाले 3 ट्रक जैसे ही फाटक के करीब पहुंचे उनकी रफ्तार कम होने लगी और सीधा फाटक की तरफ बढ़ने की बजाय वो सड़क से जरा हटकर आगे पीछे रुकने लगे। ये मंजर देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। यानी मेरा खदशा दुरुस्त है। गालिबन उन ट्रकों के जरिए फरार होने वालों के कवायफ का इंतराज किया जा रहा है, यानी मेरी बारी आने पर मुझे भी ये पेशी दरपेश होगी। जाहिर है मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं था, खुसूसन ऐसी सूरत में कि एक भारी भरकम मशीन मेरी जीप में लदी हुई थी जो फौरन ही इंदराज की कार्रवाई करने वालों की नजरों में आ जाती। उसके साथ मेरे लिए राह फरार मसदूद हो जाएगी। जैसे जैसे जीप रुके हुए ट्रकों के करीब होती गई मेरे जहन में लाह अमल वाजे होता गया। बज़ाहिर मैदान साफ है, मुझे हत्तुल इम्कान तेज रफ्तारी से जीप दौड़ाते हुए फाटक तक का 60-70 गज का फासला तय करना है। उसके बाद तो रास्ता साफ है। जब तक सिक्योरिटी स्टाफ संभलेगा, सूरत हाल समझ पाएगा, मैं बहुत दूर निकल चुका हूँगा। हो सकता है वो लोग हंगामी हालात के पेश नजर मेरी इस हरकत को जान बचाने की बदहवासाना कोशिश समझकर नजरअंदाज कर दें, वरना जो होगा देखा जाएगा। मैंने जीप को फाटक की तरफ दौड़ाने से पहले एहतियातन अपना बरेटा निकाल कर गोद में रख लिया। वो पहले ही कॉक था। मैंने लॉक हटाकर उसे गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। मेरी जीप ट्रकों के अकब में रहते हुए आगे बढ़ती रही, हत्ता कि मैं तीसरे ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तभी मुझे पिछले हिस्से की इब्तिदाई तिरछी नशिस्तों पर विराजमान दोनों फौजी उलझन भरी नजरों से अपनी तरफ देखते नजर आए। वो दोनों बज़ाहिर निहत्ते थे, लिहाजा मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और ट्रक के ऐन पीछे पहुंचकर तेजी से स्टीयरिंग दाएं तरफ घुमाया और फिर एक्सेलरेटर पूरी कुव्वत से दबाता चला गया। जीप अच्छी खासी तेजी से फाटक की तरफ बढ़ी, मगर उसकी रफ्तार मेरी तवक्को से कम थी, लिहाजा जो फासला मुझे काफी लगा था उसे पार करने में भी मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा वक्त लग सकता था। तभी मैंने अकब से कुछ नाराजी भरी ललकारें सुनी। ये आवाजें उन्हीं दोनों फौजियों की हो सकती थी। उन खबीसों ने शोर मचाकर आगे वाले ट्रक वालों के साथ साथ फाटक पर तैनात दोनों फौजियों को भी मुतवज्जे कर लिया था। लिहाजा मेरी जीप अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो दोनों चौंके। फिर उनमें से एक ने कुर्सी पर से पानी में छलांग लगाई और खुद को किसी न किसी तरह संभालते हुए हाथ से इशारा करके मुझे जीप रोकने का हुक्म दिया। वो साथ कुछ कह भी रहा था, लेकिन जाहिर है उस वक्त मैं कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था। मेरी जीप की रफ्तार में कोई कमी न पाकर वो बदबख्त सड़क के ऐन दरमियान में आकर खड़ा हो गया और शायद गालियां बकते हुए एक बार फिर मुझे जीप रोकने का हुक्म दिया। उसे ये हरकत बहुत महंगी पड़ी।
जीप को अपनी तरफ लपकते देखकर खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। उसने पहले शाने पर लटकती राइफल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर छलांग लगाकर रास्ते से हटने की कोशिश की, मगर उसने बहुत देर कर दी। फौलादी बम्पर जोरदार तरीके से उसके घुटनों से ऊपर टकराया। उसके हलक से हौलनाक चीख निकली और वो उछलकर पीछे की तरफ गिरा। अगले ही लम्हे मेरी जीप उसे रौंदते हुए मस्ताने हाथी की तरह खुले फाटक की तरफ बढ़ने लगी। चंद ही सानियों में फाटक से गुजरकर मेरी जीप ऊपर उठे हुए फौलादी बैरियर की तरफ बढ़ी और फिर उसे उबूर करके तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान में मुझे अकब से जबरदस्त चीखमधाड़ सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से एक के बाद दीगरे राइफल के 3 फायरों के धमाके सुनाई दिए। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि ये गोलियां मुझ पर ही चलाई गई हैं, मगर जीप के अकब में किसी धाती हिस्से से टन की जोरदार आवाज सुनाई दी तो तस्दीक भी हो गई। यही गनीमत था कि उनमें से कोई गोली मुझे नहीं ढूंढ पाई थी। मैंने जीप के एक्सेलरेटर पर अपने पांव का पूरा जोर डाल दिया। फाटक से खारिज होते सैलाबी रेलों के खुले मैदान में फैलने से अब सड़क पर पानी की सतह बराए नाम रह गई थी और कुछ आगे जाकर सड़क लगभग खुश्क दिखाई दे रही थी। लिहाजा इंजन ने मेरे उकसाने पर पुरजोर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जीप मजीद तेजी से दौड़ने लगी। ताहम इस असना में मेरी मिजाज पुरसी के लिए 2 गोलियां मजीद मेरी तरफ रवाना की जा चुकी थी। खुदा जाने इन गोलियों का क्या अंजाम हुआ। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि उनमें से कोई भी मुझे निशाना नहीं बना सकी थी। इससे पहले कि मैं इत्मीनान का सांस लेता, अकब से यक के बाद दीगरे गोलियों के धमाके सुनाई देने लगे। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि कई गोलियां जीप की बॉडी और बम्पर से टकराई हैं, जबकि बाकी आसपास से साएं साएं करती गुजर रही हैं। मुझ पर फायरिंग करने वालों ने शायद 20 गोलियों का पूरा मैगजीन एक साथ खाली करने की ठान ली। उनमें से कोई भी गोली मेरी सीट की पुश्त चीरते हुए मेरी खोपड़ी में छेद बनाकर मेरी कहानी का खातिमा कर सकती थी। मगर इस सूरत हाल में अपने बचाव के लिए मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता था, मां सिवाय जीप को उसकी आखिरी हद तक तेज रफ्तारी से भगाने के, जिसकी मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा था।